हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हर्ष मंडेर की एक कविताएं। हर्ष मंडेर भारतीय लेखक, संबंधकार, शोधकर्ता, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं जो विशेष रूप से सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के लिए काम करते हैं। वे सेंटर फॉर इविक्ट स्टडीज के निर्देशक हैं जो कार्रवाई ए मोहब्बत पहले का नेतृत्व करते हैं जो नफरत की हिंसा मुकाबला करती हैं। एक पूर्व आईएएस अधिकारी के रूप में उन्होंने गुजरात दंगों के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। उनका जन्म 17 अप्रैल 1955 को शिलांग में हुआ था। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में आईएएस के पूर्व अधिकारी हैं जिन्होंने ये प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगभग 2 दशकों तक काम किया था। अब उनकी एक कहानी है, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरास्मा। The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. On the third day, he decided to go his village. Did he find his family? वह चक्रवात जो अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में आया था उसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और सैकड़ों गांवों को तबाह कर दिया था। 2 भयानक रातों एक युवक प्रशांत एक ही घर की छत पर बंद रहा। तीसरे दिन उसने अपने गांव में जाने का निश्चय किया। क्या उसे उसका परिवार मिला? On on 27 October in 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Erasma. A small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. Winds beat against the house with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. Heavy and in- incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and cast to the earth. Screams rent the air as people and house were swiftly washed away. The angry water swirled into his friend's house, neck deep. The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km per hour. But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house, sometimes in the middle of the night, damaging its roof and walks. अपनी मां की मृत्यु के 7 साल बाद 17 अक्टूबर 1999 को प्रशांत अपने गांव से 18 किलोमीटर दूर अरसामा नाम के तटीय उड़ीसा के खंड मुख्यालय गया हुआ था। वह वहां अपने मित्र के साथ एक दिन गुजारने गया था। शाम के समय अचानक एक काला और भयंकर तूफान आ गया। मकानों का तेज हवाओं ने क्रोध में इतने अधिक थपेड़े मारे जितने प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखे थे। भारी और लगातार वर्षा ने अंधेरे को और गहरा कर दिया, पुराने पेड़ों को जड़ों से उखाड़कर जमीन पर गिरा दिया। लोगों की चीखें हवा में फैल गईं। जब लोग और मकान तेजी से बहे जा रहे थे, गर्दन तक ऊंचाई वाला क्रुद्ध पानी उसके मित्र के घर में घुसकर चक्कर लगाने लगा। वह इमारत ईंटों और चूने से बनी हुई थी और इतनी मजबूत थी कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली विनाश करने वाली हवा
का मुकाबला कर रही थी। किंतु पेड़ों के गिरने से और उनके उखड़ कर उनके घर पर गिरने से परिवार की उत्साहहीनता और डर और भी बढ़ गया था। पेड़ कई बार रात में गिर जाते और मकानों की नींव एवं दीवारों को तबाह कर देते। The crazy destruction wrought by the cyclone and the surge of ocean continued for the next 36 hours. Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning, to escape the water rising in the house, Prashant and his friends' family had taken refuge on the roof. Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of devastation wrought by the super cyclone. In the grey light of the early morning, a ragging, deadly brown sheet of water covered everything as far as I could see. Only fractured cement house still stood in a few places. Bloated, bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction. All round, even huge old trees had fallen. Two coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in the discuss because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. अगले 36 घंटों तक का तीव्र चक्रवात तथा समुद्र के उफान से किया गया विध्वंस चलता रहा। यद्यपि अगले दिन सुबह तक वायु की गति कुछ कम हो गई थी। प्रशांत और उसके मित्र के परिवार ने घर के अंदर बढ़ते हुए स्तर से बचने के लिए छत पर शरण ली। विनाश की पहली झलक के जो झटके वशिष्ठ चक्रवात द्वारा किए गए प्रशांत ने प्रातः काल की सलेटी रोशनी में अनुभव किए, उन्हें वह कभी नहीं भूल पाएगा। प्रत्येक चीज यहाँ तक दृष्टि जाती थी प्रचंड भयानक व मृत्युकारी पानी की भूरी चादर से ढक गई थी। कुछ जगह पर टूटे हुए सीमेंट के घर खड़े हुए थे। सब दिशाओं में फूले हुए पशु तथा मनुष्य के शव बह रहे थे। सब तरफ बड़े बड़े और पुराने पेड़ गिरे गए थे। बदले गुप्त वेश में यह वरदान था क्योंकि पेड़ के मुलायम फलों ने कई दिनों तक फंसे परिवार के भूखों को मरने की स्थिति से बचा लिया। For the next 2 days, Prashant stayed huddled with his friend's family in the open on rooftop. They froze in the cold and incessant rain. The rainwater washed away weather washed away Prashant's tears. The only thought the only The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be braved once again? अगले 2 दिन तक प्रशांत अपने दोस्त के परिवार के साथ के खुले स्थान पर साथ लगकर बैठा रहा। वे ठंड और निरंतर वर्षा में जम गए।
वर्षा के पानी ने प्रशांत के आंसुओं से धो डाला। उसके दिमाग में केवल एक विचार कौंध रहा था, का विशाल चक्रवात के क्रोध में उसका परिवार जिंदा था या नहीं। क्या उसे एक बार फिर से वियोग सहन करना पड़ेगा। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede. Prashant was determined to seek out his family without further delay. But the situation was still dangerous, and his friends' family pleaded with Prashant to stay back a little while longer. But प्रशांत नो ही हैड टू गो। 2 दिनों के बाद जो प्रशांत को 2 साल के भांति लगे थे, वर्षा होना बंद हुई और वर्षा का पानी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। प्रशांत ने बिना किसी देर के अपने परिवार की तलाश करने का निश्चय किया, लेकिन हालात अब भी खतरनाक थे और उसके मित्र के परिवार ने प्रशांत को कुछ और समय तक रुकने का अनुरोध किया। He equipped himself with a long he equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. It was a journey he would never forget. He constantly had to use his stick to locate the road, to determine where the water was not shallow. At place it was waist deep and progress was slow. At several points he lost the road, had to swim. After some distance he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead. उसने उसने एक मजबूत और लंबी छड़ साथ में ली और तूफान से युक्त बाढ़ वाले पानी के बीच 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने गांव की ओर चलने का साहसी अभियान शुरू किया। यद्यपि बाढ़ का पानी बहुत बड़ा हुआ था, यह स्थिति ये एक ऐसी यात्रा थी जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा। उसने निरंतर सड़क का पता लगाने के लिए तथा पानी की गहराई का पता लगाने के लिए एक छड़ी का प्रयोग किया। अनेकों जगहों पर पानी कमर तक गहरा था। वहां उसकी गति कम हो जाती। अनेक स्थानों पर वह सड़क को छोड़ देता और उसके उसे तैरना पड़ता था। कुछ दूरी तय करने के पश्चात उसे उस समय चैन मिला जब उसके चाचा के दो दोस्त उसे मिल गए जो गांव की ओर लौट रहे थे। उन्होंने आगे साथ साथ जाने का निश्चय किया। As they waded through the water, this scene they witnessed grew more and more macabre. They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. In every village that they passed, they could barely see a house standing. Prashant now wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived this कैटास्ट्रोफ। उन्होंने पानी में चलते हुए जो नज़ारे देखे वे बहुत डरावने होते चले गए। जैसे जैसे वे आगे की ओर बढ़ते हुए गए वैसे वैसे उन्हें बहाव की तेजी से उनकी ओर बहाकर लाए जाने वाले पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की लाशें तथा कुत्ते, बकरियों एवं अन्य दूसरे पशुओं के समूह का एक तरफ धकेलना पड़ता था।
जिस जिस गांव के पास से वह गुजरते थे उन्हें कहाँ वहाँ कठिन कठिनता से ही कोई मकान खड़ा दिखाई देता था। अब प्रशांत काफी समय तक फूट फूट कर रोता रहा। उसे विश्वास हो गया कि ऐसी से ही कोई मकान खड़ा दिखाई देता था। अब प्रशांत काफी ओ, उसे विश्वास हो गया कि विनाशकारी स्थिति में उसका परिवार नहीं बचा होगा। Eventually, Prashant reached his village Kakikuda. His heart went cold when their house, where their home once stood, there were only remains of its roof. Some of their belongings were caught, mangled, and twisted in the branches of tree just visible above the dark water. Young Prashant decided to go the Red Cross shelter to look for his family. आखिर में प्रशांत अपने गांव कालीकूड़ा पहुंचा। उसका दिल ठंडा पड़ गया। जहाँ किसी समय उनका घर था उस जगह पर उसकी छत के अवशेष पड़े थे। उनकी कुछ चीजों उनकी कुछ चीजें पेड़ों की टहनियों में अटकी हुई थीं या मुड़ी हुई थीं। काले पानी के ठीक ऊपर दिखाई देती थी। युवा प्रशांत ने अपने परिवार की खोज करने के लिए रेड क्रॉस शरण स्थल पर जाने का निश्चय किया। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother, weak with hunger. She rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. It was a miracle. They had long gave him up for dead. Quickly, word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. Prashant and anxiously scanned the mortally battered group. His brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. He sensed a deadly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. All the 96 houses had been washed away. It was their fourth day at the shelter. So far, they had survived on greens, counts, coconuts, but there were too few too good around such a टमल्ट ऑफ पीपल। सबसे पहले लोगों की भीड़ में उसकी नानी दिखाई दी। हालांकि भूख के कारण वह कमजोर हो चुकी थी, फिर भी अपने हाथों को फैलाते हुए और अश्रुपूर्ण आंखों से तेज गति के साथ आगे बढ़ी। यह एक चमत्कार था। उन्होंने उसे बहुत समय पहले मरा हुआ समझ लिया था। यह समाचार थोड़ी देर में फैल गया और उसके परिवार के दूसरे सदस्य उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और चैन महसूस करते हुए उन्होंने उसका आलिंगन किया। उसके भाई बहन और उसके चाचा और चाचियां सब दिखाई दिए। अगले दिन तक वह शरण स्थल के निराशाजनक स्थिति का निरीक्षण कर चुका था। उसने अपने पर काबू करने की कोशिश की। उसने 2500 सशक्त व्यक्तियों के घातक दुख को महसूस किया जो उस शरण स्थल में शरण लिए हुए थे। गांव के 86 लोग मर चुके थे। गांव के सारे 96 मकान बह गए थे। यह उनके शरण का चौथा दिन था। अब तक वे हरे नारियल पर जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु इतनी बड़ी अपार भीड़ के लिए उनकी मात्रा कम पड़ गई थी। Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village.
if no one else did. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for entire shelter. No one cared that the rice was already rotting. Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice for the first time in 4 days. The survivors at the cyclone center were able to fill their bellies. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, and floating carcasses, and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. प्रशांत, जो केवल 19 साल का था, वह अपने गांव का नेता बनने का फैसला किया क्योंकि अन्य कोई ऐसा करने के लिए आगे नहीं आया। उसने युवाओं और बड़ी उम्र के लोगों को सामूहिक रूप से संगठित किया। चावल के सौदागर को चावल बांटने को मजबूर करने के लिए इस बार प्रतिनिधि मंडल को सफलता मिल गई और वे जल के उतरते हुए स्तर के बीच सभी शरण पाने वालों के लिए खाने का सामान लेकर जीत के साथ वापस आए। इस बात की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया कि वहां चावल पहले से ही सड़ रहा था। गिरे हुए पेड़ों की शाखाओं को इकट्ठा किया गया ताकि कम और हल्की आग जलाई जा सके। 4 दिनों में पहली बार चक्रवात में बचे हुए लोगों ने पेट भर खाना खाया। उसका अगला काम युवा स्वयं सेवकों की एक टीम को रणस्थली की गंदगी, पेशाब, उल्टी तथा तैरते हुए शवों को हटाने के लिए संगठित करना था ताकि घायल लोग अपने घावों तथा टूट फूट का इलाज करवा सकें। On the fifth day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels in, then did not return. The youth task force gathered empty contents from the shelter. They they deputed the children to lie in the sand left by waters around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopter that they were hungry. The message got through, and after that, the helicopter made regular rounds for shelter, air, dropping food, and other basic needs. 5वें दिन एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने रणस्थली पर से उड़ान भरी और कुछ खाने के पैकेट नीचे डाले। तब वह वापस नहीं लौटा। युवा कार्यकर्ताओं ने रणस्थली से बर्तन इकट्ठे किए। तब उन्होंने पानी द्वारा छोड़ी गई रेत पर इन बर्तनों को अपने पेट पर रखकर लेट जाने के लिए बच्चे नियुक्त किए ताकि ऊपर से गुजरते हुए वायुयानों को यह मालूम हो जाए कि वे भूखे हैं। यह संदेश प्राप्त किया गया और उसके उसके बाद वायुयानों ने नियमित दौरों रणस्थल
किए और खाने की सामग्री तथा अन्य वस्तुएं नीचे गिराईं। Prashant found that a large number of children had been orphaned. He brought them together and put up the polythene shelter from them. Women were mobilized to look after them, while the men secured food and materials for the shelter. As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. He persuaded the women to start working in the food for work programming started by an NGO, and for the children he organized sports events. He himself loved to play cricket, and so he organized cricket matches for children. Prashant engaged with the other volunteers in helping the widow and children to pick up the broken piece of their lives. The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows. However, these steps were successfully res- resisted as it was felt that in such institutions children would grow up with love and widows would suffer from stigma and loneliness. Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new fosters families made up of childish video and children without adult care. प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं। उसने उन्हें इकट्ठा किया और उनके लिए पॉलिथीन की चादर लगाकर शरण स्थान बना दिया। महिलाओं को उनकी देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी और पुरुषों को उनके लिए खाने की सामग्री तथा अन्य जरूरती चीजों के लिए जिम्मेदारी दी। ज्यों-ज्यों सप्ताह बीतते गए, प्रशांत ने तेजी से ये एहसास किया कि महिलाएं एवं बच्चे बहुत दुखी होते जा रहे हैं। उसने महिलाओं को काम के लिए भोजन प्रोग्राम में भाग लेने के लिए राजी कर लिया, जिसकी शुरुआत एनजीओ ने की और उसने बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। उसे स्वयं क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, इसलिए उसने बच्चा के लिए क्रिकेट को मैच आयोजन किया। प्रशांत दूसरे स्वयंसेवकों के साथ मिलकर विधवाओं और बच्चों की सहायता के कार्य में जुट गया, ताकि अपने जीवन के शत विशत टुकड़ों को संभाल सके। सरकार की प्रथम योजना अनाथों और विधवाओं के लिए संस्थाएं स्थापित करना था, पर इस कदम को सक्रिय विरोध हुआ, क्योंकि इस प्रकार की संस्था में बड़े हुए प्रेम है वंचित रहेंगे और विधवाएं कलंकों व एकांत भाव से ग्रस्त होंगी। प्रशांत के दल का विश्वास था कि उन्हीं के संप्रदायों के भीतर अन्यथा अनाथों को दोबारा स्थापित किया जाएगा। यदि संभव हो तो उन्हें पोशाक गृहों में रखा जाए, जो कि वयस्क के नियंत्रण में न हो, बल्कि बिना बच्चों वाली विधवाओं बच्चों को योग से बने हुए हों, जिनकी देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति ना हो। 86 months after devastation of the super cyclone, the time Prashant would split has headed simply because he had no time to bother about his own pains.
His handsome, youthful face is what the widows and orphaned children of his village seek out most in their darkness hour of grief. विशाल चक्रवात द्वारा की गई तबाही के बाद 6 महीने का समय बीत चुका था। प्रशांत की घायल आत्मा स्वस्थ हो चुकी है, क्योंकि उसके पास अपने कष्टों द्वारा परेशान होने का समय नहीं था। उसके सुंदर तथा युवा चेहरे को उसके गांव के विधवाएं तथा अनाथ बच्चों ने अपने दुख के कठोरतम समय में लालसा भरी दृष्टि से देखते हैं। इस कहानी से ये कहानी हमें जो भी मतलब हमको ये सीख देती है कि मुसीबत के समय में हमको हमको औरों की तरह पीछे नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। अगर कभी भगवान करे हमारे साथ ऐसा ना हो, पर हो और हम कहीं दूर या हमारा परिवार उस परिस्थिति में फंसा हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? उससे पीछे भागेंगे या उनको बचाने के लिए आगे जाएंगे? ये चीज़ ये बहुत ज़्यादा प्रभाव करती है इस कहानी के ऊपर जो है। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और कल आपसे मिलेंगे दोबारा ऐसी ही नई कहानी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग करें हमारे साथ। धन्यवाद।